کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص جب سب کچھ کھو دیتا ہے تو اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ ایک تاجر جس نے صحرا کے طوفان میں اپنا سب کچھ کھو دیا، اس کے ساتھ آگے جو ہوا وہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ یہ قصہ سنیے اور آخر تک سنیے، کیونکہ اس کا انجام آپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ بات ان دنوں کی ہے جب شام کے علاقے میں ایک نیک دل اور خدا پرست تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام تھا ابراہیم۔ ابراہیم کا زیتون کے تیل کا کاروبار تھا، جو اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کے باغات میں ہزاروں زیتون کے درخت تھے۔ ان درختوں سے نکلنے والا تیل اپنی خوشبو اور معیار کی وجہ سے دور دراز ملکوں میں مشہور تھا۔ ایک دن ابراہیم کو مصر کے ایک بڑے تاجر کی طرف سے پیغام ملا۔ اس نے لکھا تھا، میں بڑی مقدار میں زیتون کا تیل خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا تیل اچھا ہوا تو میں ہر سال باقاعدگی سے تم سے خریدوں گا۔ یہ ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اس نے اپنی بیوی مریم سے مشورہ کیا، استخارہ کیا، اور اس کے دل میں آیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک دروازہ کھل رہا ہے۔ ابراہیم کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی، وہ کبھی ملاوٹ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ خالص اور بہترین تیل فروخت کرتا۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس سے تیل خریدنے آتے تھے۔ اس کی بیوی مریم بھی نیک دل تھی، وہ غریب خواتین کو زیتون کا تیل مفت دیا کرتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، یوسف اور داؤد، جو اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ابراہیم نے اپنا بہترین معیار کا تیل تیار کیا، 100 بڑے مٹی کے مرتبانوں میں بھرا۔ ہر مرتبان میں تقریباً 50 من تیل تھا، جو بے حد قیمتی تھا۔ اس نے 50 اونٹوں کا قافلہ تیار کیا، اپنے بڑے بیٹے یوسف کو ساتھ لیا۔ سفر سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے سفر کی سلامتی کی دعا مانگی۔ مریم اور داؤد نے آنکھوں میں آنسو لیے انہیں الوداع کہا۔ قافلہ روانہ ہوا، شام سے نکل کر صحرائے سینا کی طرف۔ راستہ لمبا تھا، مشکل تھا، خشک صحرا جہاں پانی کی کمی اور گرمی کی شدت انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ابراہیم نے اپنے ساتھ 10 مزدور اور 5 محافظ رکھے تھے۔ قافلہ دن میں چلتا، رات کو کسی محفوظ جگہ ڈیرا ڈالتا۔ ابراہیم ہر نماز کا وقت ہونے پر قافلہ رکواتا، سب مل کر نماز ادا کرتے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، اللہ کی عبادت ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تیسرے دن کی دوپہر کو اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، لیکن یہ بارش کے بادل نہیں تھے۔ بوڑھے مزدور نے چلا کر کہا، ریت کا طوفان آ رہا ہے، جلدی پناہ ڈھونڈو۔ لیکن اس بنجر صحرا میں پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابراہیم نے حکم دیا، اونٹوں کو بٹھاؤ، مرتبانوں کو مضبوطی سے باندھ دو۔ چند ہی منٹوں میں طوفان نے قافلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہوائیں اتنی شدید تھیں کہ لوگ اپنی جگہ سے ہلنے لگے۔ ریت کے جرات چہروں پر چبھ رہے تھے، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، دونوں زمین پر لیٹ کر اللہ کا نام لے رہے تھے۔ طوفان کئی گھنٹے جاری رہا۔ ابراہیم کے دل میں خوف تھا، لیکن اس کا اللہ پر بھروسہ اٹل تھا۔ جب طوفان تھما، منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ریت نے ہر چیز کو ڈھانپ دیا تھا، قافلہ بکھر چکا تھا۔ ابراہیم نے ساتھیوں کو آواز دی، شکر خدا، سب زندہ تھے۔ لیکن جب اونٹوں کو گنا، 30 اونٹ غائب ہو چکے تھے، جن پر 60 مرتبان زیتون کا تیل لدا ہوا تھا۔ یہ ابراہیم کے پورے سرمایہ کا بڑا حصہ تھا۔ ہر طرف تلاش کیا، لیکن اونٹ کہیں نظر نہیں آئے۔ ابراہیم کا بیٹا یوسف رونے لگا، ساتھی پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ابراہیم نے بیٹے کو چپ کرایا اور کہا، بیٹا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ابراہیم کے دل میں بھی طوفان تھا۔ یہ نقصان اس کے کاروبار کو تباہ کر سکتا تھا۔ گھر کا سارا سرمایہ داو پر لگا تھا۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو اس کا خاندان بھوکا رہ جائے گا۔
इब्राहिम ने अपना हौसला नहीं हारा, बचे हुए काफिले को संभाला। अब उसके पास सिर्फ 20 ऊंट, 40 मर्तबान। यह इतना कम था कि मिस्री ताजिर का आर्डर पूरा नहीं हो सकता था। उस रात जब काफिला रुका, इब्राहिम ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अल्लाह से खूब दुआ मांगी, सजदे में रोया और कहा, या अल्लाह, मैं जानता हूं कि यह तेरी आजमाइश है, मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा, मेरी मदद फरमा। अगले दिन सुबह काफिला आगे बढ़ा। रास्ते में एक छोटा सा नखलिस्तान नजर आया, खजूर के चंद दरख्त, एक छोटा सा चश्मा। काफिला रुका, पानी भरा, आराम किया। जब लोग पानी पी रहे थे, इब्राहिम ने देखा कि नखलिस्तान के कोने में एक बूढ़ा दरवेश बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर नूर था, तस्बीह पढ़ रहा था। इब्राहिम उसके पास गया, सलाम किया, हजरत, आप इस वीरान जगह पर कैसे? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, जहां अल्लाह चाहता है वहीं रहता हूं। इब्राहिम ने अपना सारा किस्सा सुनाया। दरवेश ने गौर से सुना, फिर कहा, बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि वो उसके और करीब हो जाए। तुम्हारा सब्र और भरोसा देखकर मुझे यकीन है अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। फिर उसने कहा, सुलेमान, अपना सफर जारी रखो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मिस्री ताजिर को दिखाओ, अल्लाह किसी ना किसी तरह तुम्हारा काम बना देगा। इब्राहिम ने कहा, हजरत, मेरे पास तो आधा सामान भी नहीं है। दरवेश ने कहा, बेटा, अल्लाह की कुदरत पर शक ना करो, वो जब चाहे रास्ता निकाल लेता है। फिर उसने अपना हाथ इब्राहिम के सर पर रखा और दुआ दी। इब्राहिम को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसके दिल में उम्मीद की किरण रोशन हुई। जब इब्राहिम ने दरवेश को शुक्रिया कहना चाहा, वो वहां से गायब हो चुका था। इब्राहिम ने इधर-उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। इब्राहिम समझ गया, यह कोई आम दरवेश नहीं था। काफिला दोबारा रवाना हुआ। इस बार इब्राहिम के दिल में नई उम्मीद थी। वो यूसुफ से कहता रहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर हमारी मदद फरमाएगा। चंद दिन के सफर के बाद काफिला दरिया नील के किनारे पहुंचा। मिस्र का शहर करीब था। इब्राहिम के दिल में दोबारा परेशानी आने लगी। मैं ताजिर से क्या कहूंगा? आधा सामान नहीं है। लेकिन उसने अपने आप को समझाया, जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। जब काफिला मिस्र के शहर में दाखिल हुआ, इब्राहिम ने पूछ कर ताजिर की हवेली ढूंढी। ताजिर का नाम मूसा था, मिस्र का सबसे अमीर और मुअज्जज ताजिर। उसकी हवेली बड़ी और शानदार थी। इब्राहिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। खिदमतगार ने दरवाजा खोला। जब इब्राहिम ने अपना तारुफ कराया तो मूसा खुद बाहर आया। उसने इब्राहिम को बड़े एहतराम से अंदर ले गया और कहा, इब्राहिम, मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम्हारे जैतून के तेल की शोहरत यहाँ तक पहुंची है। इब्राहिम बैठ गया। मूसा ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारा तेल बेहद खालिस और बेहतरीन होता है। इब्राहिम ने सर झुकाया और कहा, हजरत, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है। फिर उसने पूरा वाकया सुनाया, तूफान, ऊंट, नुकसान, सब कुछ। मूसा ने गौर से सुना, फिर कहा, इब्राहिम, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। तुम चाहते तो मुझसे कुछ ना कहते और जो सामान है वो दे देते। इब्राहिम ने कहा, नहीं हजरत, मैं झूठ नहीं बोल सकता, यह मेरे दीन के खिलाफ है। मूसा बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, आजकल ऐसे ईमानदार ताजिर मिलना मुश्किल है। मूसा ने इब्राहिम के मर्तबान खुलवाए। एक मर्तबान का तेल देखा, रंग सुनहरी था, खुशबू आ रही थी। मूसा ने तेल को चखा और फौरी तौर पर पहचान लिया, यह आला तरीन किस्म का तेल है। उसने कहा,
इब्राहिम, यह तो बेहतरीन तेल है जो मैंने कभी देखा। इब्राहिम के चेहरे पर फिक्र के आसार थे। उसने कहा, हज़रत, मैंने आपसे 100 मर्तबान का वादा किया था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 40 है। मूसा ने मुस्कुराकर कहा, इब्राहिम, तुम्हारी ईमानदारी और मयार ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं यह 40 मर्तबान खरीद लेता हूँ और बाकी का इंतजार कर सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा, लेकिन हज़रत, मैं नहीं जानता कि बाकी कब ला पाऊंगा। मूसा ने कहा, इब्राहिम, मैं एक तजवीज देता हूँ। मैं इन 40 मर्तबानों की कीमत तुम्हें अभी अदा कर देता हूँ। जब बाकी 60 लाओगे तब उनकी कीमत दूंगा। इस तरह तुम्हें नया सामान तैयार करने के लिए पैसे मिल जाएंगे। इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मूसा ने अपने खजांची को बुलाया और इब्राहिम को पूरे पैसे अदा कर दिए। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि इब्राहिम का सारा नुकसान पूरा हो गया और उसके पास और पैसे बच गए। मूसा ने इब्राहिम को अपनी हवेली में ठहरने की दावत दी। उन चंद दिनों में मूसा ने इब्राहिम को मिस्र के बाजारों में घुमाया, दूसरे ताजिरों से मिलवाया। इब्राहिम की ईमानदारी की शोहरत फैल गई। कई ताजिरों ने उससे जैतून का तेल खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। इब्राहिम को यकीन हो गया, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, जिसने मुसीबत को रहमत में बदल दिया। एक रात इब्राहिम ने तहज्जुद की नमाज में बहुत रोया। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे मायूसी से निकालकर उम्मीद दी। तूने मेरी मुश्किल को आसानी में बदल दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ और वादा करता हूँ कि जो कुछ तूने मुझे दिया है, उसमें से तेरी मखलूक की खिदमत करूँगा। वापसी का सफ़र शुरू हुआ। इस बार इब्राहिम के दिल में कोई खौफ नहीं था। रास्ते में जब वो उसी नखलिस्तान के पास से गुजरा, उसने वहां रुककर नवाफिल अदा किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ से कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। बस हमें सब्र और यकीन रखना होता है। जब काफिला उस जगह के करीब पहुंचा जहां तूफान आया था, इब्राहिम ने कहा, हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और अपने गुमशुदा ऊँटों को एक बार फिर तलाश करते हैं। कई हफ्ते गुजर चुके थे, उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन इब्राहिम के दिल में कुछ था जो उसे मजबूर कर रहा था। लोग मुख्तलिफ सिमतों में फैलकर तलाश करने लगे। रेत के टीले हर जगह थे, कोई निशान नहीं मिलता था। कुछ मजदूरों ने कहा, यह फिजूल है, अब कुछ नहीं मिलेगा। इब्राहिम ने कहा, हम कोशिश तो कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। 2 घंटे तक तलाश जारी रही, कुछ नहीं मिला। इब्राहिम ने फैसला किया, अब आगे बढ़ना चाहिए। जब वो वापस मुड़ने लगा, यूसुफ ने दूर एक टीले की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, अब्बा जान, वो देखिए, वहाँ कुछ है। इब्राहिम ने नजर उठाई, वाकई कुछ नजर आ रहा था। सब दौड़ते हुए उस टीले की तरफ गए। जब करीब पहुंचे, एक पुराना कुआं था जिसके पास कुछ ऊंट बैठे हुए थे। इब्राहिम की खुशी की कोई हद ना रही। यह वही गुमशुदा ऊंट थे। कुएं में पानी था, जिसकी वजह से ऊंट जिंदा रहे। इब्राहिम ने गिनती की, सब 30 ऊंट मौजूद थे और उन पर लदे मर्तबान भी महफूज थे। सिर्फ चंद मर्तबान टूटे हुए थे, बाकी सब सलामत थे। इब्राहिम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने फौरी तौर पर सजदा शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, यह तेरी कुदरत है, या अल्लाह, तूने मेरा सब कुछ वापस कर दिया। साथी भी हैरान थे, सब ने अल्लाह की तारीफ की। एक बूढ़े मजदूर ने कहा, यह मोजज़ा है, इतने अरसे बाद ऊँटों का जिंदा मिलना। इब्राहिम ने मर्तबान चेक किए, 55 मर्तबान बिल्कुल सलामत, सिर्फ 5 टूटे हुए। इसका मतलब अब उसके पास कुल 95 मर्तबान जैतून का तेल था। इब्राहिम ने हिसाब लगाया, मूसा को 40 दे चुका था, अब उसके पास 95 है। यानी वो ना सिर्फ मूसा का आर्डर पूरा कर सकता है,
बल्कि उसके पास इजाफी तेल भी बच जाएगा। इब्राहिम ने सोचा, अल्लाह ने नुकसान को नफ़े में बदल दिया। अगर तूफान ना आता तो शायद वो मूसा से नहीं मिलता और मूसा के दूसरे ताजिर दोस्तों से भी नहीं मिलता। अब उसके पास नए ग्राहक भी और पुराना सामान भी। काफिला दोबारा मुकम्मल हो गया। इब्राहिम खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो लोगों को अपना वाक़या सुनाता, देखो अल्लाह कैसे अपने बंदों की मदद फरमाता है। जब काफिला शाम के इलाके में दाखिल हुआ, लोगों ने इब्राहिम को देखा और खुशियां मनाई। कई लोगों ने कहा था कि इब्राहिम का काफिला सहरा में खत्म हो गया होगा, लेकिन वो वापस आ गया था और पहले से ज्यादा मालदार बनकर। जब इब्राहिम अपने घर पहुंचा, मरियम दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने शौहर और बेटे को देखा, खुशी से रोने लगी। इब्राहिम ने मरियम को पूरा वाक़या सुनाया। मरियम, अल्लाह ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। मरियम ने कहा, मैं जानती थी अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा क्योंकि तुम नेक दिल हो। अगले दिन इब्राहिम ने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा निकाला। शहर में एक लंगरखाना कायम किया जहां गरीब लोग मुफ्त खाना खा सकते थे। एक यतीम खाना भी बनवाया जहां बेसहारा बच्चों की परवरिश होती थी। इब्राहिम की सखावत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। कुछ महीनों बाद इब्राहिम ने दोबारा मिस्र का सफ़र किया, मूसा को बाकी सामान पहुंचाया। मूसा बहुत खुश हुआ, इब्राहिम, तुमने वादा पूरा किया, अब हमारी दोस्ती पुख्ता हो गई है। इब्राहिम का कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता गया। वो अपने इलाके का सबसे बड़ा जैतून का ताजिर बन गया। लेकिन कामयाबी ने उसे मगरूर नहीं बनाया। वो पहले से ज्यादा आजिज और अल्लाह का शुक्रगुजार बन गया। साल गुजरते गए, इब्राहिम बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, बेटों, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं रही, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ नसीहतें करूं। यूसुफ और दाऊद अपने वालिद के कदमों में बैठ गए। इब्राहिम ने कहा, पहली बात, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। दुनिया में कितनी ही मुश्किलें आए, अल्लाह जरूर रास्ता निकालता है। दूसरी बात, कारोबार में हमेशा ईमानदारी रखना। झूठ और फ्रेब से कमाया हुआ माल कभी बरकत नहीं देता। तीसरी बात, गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उसमें दूसरों का भी हक है। चौथी बात, मुश्किल वक्त में सब्र करना और आसानी में शुक्र करना। यह दोनों इबादत है। पांचवी बात, हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करना और हर फैसले में अल्लाह से मशवरा करना। यूसुफ और दाऊद ने सर झुकाकर सुना और दिल में बिठा लिया। इब्राहिम ने कहा, बेटों, मैंने तुम्हारे लिए जो छोड़ा है वो सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि एक नाम और साख है। इस नाम को संभालना। फिर एक दिन इब्राहिम ने नमाज की चटाई पर लेटकर अल्लाह का नाम लिया। आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सुकून था, होठों पर मुस्कुराहट। वो जानता था अब वो अपने रब से मिलने जा रहा है। कुछ घंटे बाद मरियम ने जब देखा इब्राहिम इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, खबर फैलते ही पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। इब्राहिम के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। अमीर, गरीब, ताजिर, मजदूर, सब लोग कह रहे थे, आज एक नेक और ईमानदार इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कई दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन इब्राहिम का नाम जिंदा रहा। दादा दादियाँ अपने पोते पोतियों को इब्राहिम का किस्सा सुनाते, देखो बच्चों, यह है अल्लाह पर भरोसे का नतीजा। जब भी कोई मुश्किल में होता, लोग कहते, इब्राहिम की तरह सब्र करो, अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा। दोस्त